اب ہم اس بات کو کلام مقدس میں دیکھیں گے. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت. جس نے نکالا ہے وہ قریش ڈرائے اور تلاوت پاک کرے. آمین. داؤد کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. تو میرے عزیزوں اس آیت میں ہم نے سنا، اس آیت میں سنا اور سیکھا کہ جو موت اور جو زندگی ہے، جو دو الفاظ ہیں، جو دو رستے ہیں، یہ ہماری زبان کے قابو میں ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی کو گلے لگانا ہے یا موت کو گلے لگانا ہے. ہم امثال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 3 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے وہ ہلاک ہوگا. ہلیلویا. جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے وہ ہلاک ہوگا. اب اس آیت میں ہمیں بڑی خوبصورت وضاحت ملتی ہے اس بات کی کہ جو زندگی اور جو موت ہے وہ زبان کے قابو میں ہے. اب اس آیت میں ہمیں بڑی وضاحت ملتی ہے. تو وضاحت کیا ہے کہ جو لوگ اپنے منہ کی، اپنے زبان کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی کہ اس پر کنٹرول کرتے ہیں، اسے اپنے قابو میں رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں. اب ہم نے جب دیکھا کہ زبان کے قابو میں ہے تو اس آیت کے یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے، جو زبان کی نگہبانی کرتا ہے، جو زبان کو بے فائدہ استعمال نہیں کرتا، جو زبان سے اچھے الفاظ نکالتا ہے، جو زبان سے بڑھائی کی باتیں کرتا ہے، جو زبان سے اچھائی کی باتیں کرتا ہے، جو خداوند کی باتیں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. ہلیلویا. اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. وہ اپنی جان کو دکھوں میں نہیں ڈالے گا. جو وہ دھاگ رہا ہے وہ اس میں نہیں جائے گا. اور جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے، جو اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں، جو دباتے ہیں، دانتوں کو پیستے ہیں اور برے برے خیالات جو ہیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، برے برے الفاظ نکالتے ہیں، برائی کی باتیں کرتے ہیں، بڑائی کی باتیں نہیں کرتے، ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان کو ہلاک کرتے ہیں. خدا نے ہمارے سامنے دو رستے بنا دیے ہیں، دو دروازے کھول رکھے ہیں کہ جو نیکی کا دروازہ ہے وہ بھی کھلا ہے، جو بدی کا دروازہ ہے وہ بھی کھلا ہے. خدا نے دو رستے بتا دیے. اب انسان نے وہ سوچنا ہے، انسان نے، خدا نے انسان کو اپنی شکل، اپنی صورت میں بنایا اور اس کو عقل دنائی بخش دی، اور اس نے اب وہ عقل دنائی سے یہ ٹچ کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں نے کس رستے پر چلنا، میں نے اپنی جان کے لیے کون سا رستہ جو ہے وہ چننا ہے، میں نے کس رستے پر چلنا ہے. اب ایک مثال ہم دیکھیں گے. دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب، دوسرا سلاطین اس کا پہلا باب اور پہلی آیت.
अक्सिया उस झिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में गिर पड़ा और बीमार हो गया, तो उसके कास्टों को भेजा और उससे ये कहा कि जाकर अखनून के देवता बाल-ज़बूल से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी। आमीन। अब इस जब हमने ये आयतें पढ़ी तो इसमें लिखा है कि एक बादशाह है। अखिया बादशाह के मरने के बाद मुआब के जो इस्राएली थे वो क्या हुआ कि बागी हो गए, और जो अक्सिया में जो झिलमिलीदार खिड़की थी, जो बादशाह था उसकी जो खिड़की थी वो एक बड़े खूबसूरत जगह की तरफ खुलती थी। क्या हुआ कि बालाखाना में वो खुलती थी, वो बादशाह उस खिड़की से क्या कर रहा था, टहल रहा था। अब जब वो टहलते टहलते उसका पैर फिसलता है तो वो क्या करता है कि गिर जाता है। जब वो गिरता है तो लिखा है कि वो बीमार पड़ गया, और जब वो बीमार पड़ता है तो अब वो देखिए आदमी जब गिरता है तो उसका कुछ नुकसान होता है, या पैर की हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया या कुछ और हो गया, तो कुछ चीजें अलामत हो जाती हैं। लेकिन लिखा है कि वो बीमार हो गया, और जब वो बीमार होता है तो वो किसी से दवा कर लेने की बजाय, किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास जाने की बजाय वो अपने नौकरों को कहता है कि जाओ यार वो बाल-ज़बूल जो है, जो देवता है, उसके पास जाओ, जो जादूगर है, बड़ा जादूगर, माना ताना जादूगर है, उसके पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि यार मैं इस बीमारी से छूटूंगा या नहीं, मैं कब अच्छा हो जाऊंगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं बीमारी से छूट जाऊं। लेकिन खुदावन के फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम अखनून के देवता बाल-ज़बूल से पूछने चले हो। आमीन। अब देखें कि खुदा का फरिश्ता, खुदा के प्लान कुछ और है, खुदा की कुछ सोच और है, खुदा ने किस तरह उसको राह रास्त पर लाना है, खुदा ने क्या तरीका बनाया है, क्या रास्ता बनाया है कि वो बंदा वापस लौट आए। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बनी आदम लौट आ, मैंने तेरा फिदिया अता फरमा दिया। हालेलुया। अब देखें कि खुदा का प्लान क्या है। खुदा अपने बंदा एलिया तशबी को कहता है कि जो कासद हैं, ये जो सिपाही आए हैं, इनसे जाके मिल और इनको बता कि तुम्हारे शहर में कोई खुदा नहीं है, या तुम्हारे शहर में कोई खुदा का बंदा नहीं है, या तुम्हारे शहर में कोई पादरी नहीं है, तो क्यों देवताओं के पास आ गया, तो क्यों जादूगरों के पास आता है और उनसे पूछता है क्या मैं ये मर जाऊंगा, या मैं ठीक हो जाऊंगा, या मैं क्या करूं। तो वो क्या कहता है, अब खुदा का प्लान जो है वो कुछ और है, और जब खुदा अपने बंदे को कहता है कि तुमसे पूछने को जा, इसलिए कि यूं खुदावंद यूं फरमाता है कि तू पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा। और खुदा कहता है कि जब उसका बंदा उन कास्तों से मिलता है तो वो कहते हैं कि जा अपने मालिक को कह कि तू जिस पलंग पर लेटा है तू जिंदगी भर इस पलंग से नहीं उतरेगा, और इसी पलंग पर तेरी मौत हो जाएगी, तो जरूर मरेगा इस पलंग पर, उतरेगा ही नहीं। क्या होता है कि सो एलिया चला जाता है, ये पैगाम दे के उन कासदों को चला जाता है, और जो वो कासद होते हैं वो वापस लौट जाते हैं और बादशाह को कहते हैं कि हम उसके पास तो नहीं गए, लेकिन हमें खुदा का बंदा एलिया तशबी मिला था, और उसने कहा कि तुम्हारे पास तो खुदा का खादम नहीं है, खुदा का कोई बंदा नहीं है, जिसके पास तुम जाओ और उससे पूछो कि मैं इस पलंग से, इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसने कहा कि तू इस पलंग पर से जिस पर तू लेता है कभी उतरेगा नहीं, इस पलंग पर ही तेरी मौत होगी।
ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया कि उसकी इतनी मजाल कि मुझे कहे, एक बादशाह को कहे मैं जिसको चाहूँ सजाए मौत दे दूँ, जिसको चाहूँ मैं बरी कर दूँ, और उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे कहेगा तो इस पलक पर से नहीं उतरेगा, इस पलक पर तेरी मौत हो जाएगी। उसको गुस्सा आता है और वो क्या कहता है, अपने अच्छे सिपाही जो होते हैं उसके, जो बड़े जंगजू होते हैं, जो बड़े लड़ाके होते हैं, वो उनको कहता है कि तू इन 50 लोगों को लेकर जा और खुदा के बंदे को पकड़ के मेरे पास ले, मैं उसको यहाँ पर सजा दूंगा। अब देखिए जो खुदा का आदम क्या करते हैं, बोले वाले तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप का रूह है। खुदा ने इसको खुद कहा था कि तू इस बंदे से जाके, इन कास्तों से जाके ये कह कि तू इस पर मत नहीं उतरेगा, बल्कि तेरी मौत हो जाएगी। अब बादशाह को जब पता चलता है वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये बता गलत है, इसको पढ़ के मेरे पास ले, जो मैं तुझे सजा दूंगा, इतनी मजाल, इसे मुझे ये अल्फाज कहे तो तू मर जाएगा। देखा कच्चे से 5 सिपाही, 50 सिपाही लोग, और एक जो सिपाहियों का सरदार होता है, उसको 51 लोगों को उसने कहा कि जाओ अब बादशाह को, उस बंदे को जिसने ये कहा है पकड़ के मेरे पास ले। और वो सिपाही जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ये उसको क्या कहते हैं, उनसे कहा कि शख्स ने कहा कि तू बंदे आम से गया, बंदे तू नीचे उतर आ पहाड़ से, तूने ये कह दिया, तेरी इतनी मजाल कि तूने एक बादशाह को कहा कि तू इस पलक पर से उतरेगा नहीं, बल्कि तू इस पर मरेगा। खुदा अपने बादल को ये ऐसी बात इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे अल्फाज घटिया इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा कि अगर मैं खुदा का बंदा हूँ, अगर मैं खुदा के मानने वाला हूँ, तो आसमान से आग आए और इस कामों लोगों को जलाकर भस्म कर दे। क्या हुआ कि वो 51 लोग आसमान से आग आई और कामों लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। जब वो 51 लोग मर गए, बादशाह को पता चला कि यार 51 लोग मर गए हैं, और गजबनाक हुआ और भड़क गया। उसने कहा कि अपने 50 सिपाही से और भेजे जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर और उनसे भी ज्यादा जंगजू थे, उनको भेजा, और उनके साथ एक जो कमांडर था उनका, उनको भी भेजा। और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने कहा कि सरकारों के सिपाही को जवाब दिया कि मैं अगर खुदा का बंदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो, और पूरे खुदा के बंदा को अदब और एहतराम से नहीं बुलाया, अच्छी जुबान उसके लिए इस्तेमाल नहीं की, अच्छे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उसकी बेइज्जती की। उसने कहा कि इस पहाड़ से तू नीचे उतर आ और हमारे साथ चल। लेकिन खुदा के बंदा ने कहा ये अल्फाज सही नहीं है, खुदा इन अल्फाजों से राजी नहीं हुआ, खुदा खुश नहीं हुआ। तो खुदा ने उसके दिल में डाला कि उसने कहा कि मैं अगर खुदा का बंदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो और इन सिपाहियों समेत इसको जलाकर भस्म कर दे। और ऐसा नहीं हुआ, खुदा या आदम ने जो चाहा खुदा ने उसके लिए वैसा ही कर दिया। आसमान से आग नाज़िल उतरी और जो 51 लोग और आए थे वो भी जलकर भस्म हो गए। उनकी जुबान क्या थी, खुदा को आदमी को बुलाने का तरीका सही नहीं था, जुबान से अल्फाज अच्छे नहीं निकले थे। अब कहता है कि उस तीसरे ग्रुप को उसने भेजा। बादशाह ने कहा कि यार तुम सबसे ज्यादा जो है पावरफुल हो, तुम मेरी बड़ी ताकत हो, मैं तुम पर बड़ा फख्र करता हूँ, मेरी सल्तनत तुम पर चल रही है, तो तुम जाओ, 51 लोगों का जाओ
और उसको बंदे को पकड़ के मेरे पास ले दिया। तब तो 30 लोग लिखा है कि फिर उसने 30-50 सिपाहियों के सरदार को और 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों को तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर, अब देखें खुदा के खादम की इज्जत देखें और खुदा का बयान सुने। वो आसमान वो क्या करा कि वो सिपाही जो साहब था, वो सरदार जो था, उसने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम नीचे रुको। वो अकेला ऊपर चढ़ा पहाड़ पर, खुदा के खादम के पास गया और क्या किया कि घुटनों के बल हो गया। हालेलुया, घुटनों के बल हो गया। और जाके क्या कहता है, घुटने के बल गिरा और हिम्मत करके उससे कहने लगा। अल्फाज क्या हमें उनके अल्फाज कैसे थे और उसके अल्फाज कैसे। घुटनों के बल होकर उसका रेट हुआ, घुटनों के बल हुआ और उससे कहा, कहने लगा, मिन्नत करके कहने लगा कि ऐ मर्द खुदा, मेरी जान और इन 50 की जान तो तेरे खातम है, तेरी निगाह में गिरा हूँ। एक आसमान से आग नाज़िल हुई और 50-50 करके सिपाहियों को दूर अब तो थे वो जलकर भस्म हो गए। और उसने उनसे कहा कि मेरी और जो मैं नीचे सिपाही छोड़ के आया हूँ उन सब की जान को माफ़ कर। मैं तेरा खादम हूँ और जो नीचे हैं वो भी तेरे खादम हैं, तेरी जान तेरी मानने वाले हैं, तेरी खुदा से मानने वाले हैं। मेरी और इन 50 की जान को बख्श दे और हमारे साथ चल। इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, घुटने के बल हुआ और उससे अपनी जान की छुआई और अब खुदा की बारी आ गई। और खुदा ने कहा, तब खुदा के पिता ने एलिय्याह से कहा कि उसके साथ नीचे चला जा। हालेलुया, जुबान से जिंदगी हासिल कर ली। और जो 102 लोग आए थे जुबान के हिवज मौत को गले लगा लिया। और जब खुदा ने उससे कहा कि एलिय्याह से कहा कि तू नीचे उतर और मेरे साथ जा, इसकी बात सुन जाके। जब नीचे जाए उससे ना डर, खुदा ने कहा कि उससे डरना। तब वो उठकर उनके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उसने कहा, उसने खुदावंद का पैगाम दिया। बादशाह ने कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तूने अकरूम के देवता बाज़बूत से पूछने को लोग भेजे हैं, तू क्या इसलिए कि इस्राएल में कोई खुदा नहीं जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके। खुदा की मर्जी को तूने जाना ही नहीं, तूने खुदा की तलाश की नहीं, तूने खुदा का कोई बंदा ढूंढा ही नहीं। तेरा सीधा जो ध्यान था वो जादूगरों के देवता के पास भेजे। और लिखा है कि दरियाफ्त किया इसलिए कि तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। अब एलिय्याह ने उस बादशाह ने जब पास किया तो उसको ये पैगाम दे दिया कि ये खुदा यूँ फरमाता है कि तू इस पलंग से जिस पर तू लेटा है उसका उतरेगा नहीं, उसका तेरी मौत हो जाएगी। तो वो खुदा के कलाम के तामुल जो एलिय्याह ने कहा था मर गया, जैसा एलिय्याह ने कहा था वो मर गया। अब मेरे अजीजों, इसमें क्या हमें मिलता है सबक कि 102 जो बंदे थे उनकी जुबान ठीक नहीं थी खुदा के खादम के लिए, खुदा के लिए उनके अल्फाज नहीं सही थे, जुबान सही नहीं थी। तो क्या हुआ कि जुबान के वसीला से मौत को क्या किया, गले लगा लिया। और जो तीसरी पार्टी गई उसने जुबान के अपनी जान बख्शवाई और जिंदगी हासिल कर ली। हमें भी अपनी जुबान पर काबू करना है। कुरान मुकद्दस में हमने पहली आयत को जब हमने पढ़ा था, बेटी ने पढ़ा कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। अब हमने सोचना है कि हमें जिंदगी लेनी है या मौत।
एक आयत पढ़ेंगे अपनी रोमियो 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना लाजमी है होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हालेलुया। अब खुदा की रास्तबाजी को जानने के लिए उसने कहा ईमान लाना है, लेकिन इकरार जो है वो मुंह से करना है, जुबान से इकरार करना है तो जिंदगी मिलनी है। हालेलुया। जुबान से इकरार करेंगे तो जिंदगी मिलेगी, जुबान ही से इकरार करेंगे तो मौत को गले लगा लेंगे। अल्फाजों में फर्क है। हमें भी अब अकल बनाई खुदा ने हमें दी है और हमने ये सोचना है कि हमने जिंदगी को गले लगाना है। ये अपने बहुत ये दोनों चीज़ें हमारे जुबान के अख्तियार काबू में हैं। अब यकूब का पहला बाब उस 19वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में धीरा और हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहने में धीमा हो। अभी साथ में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुनने में तेज हो। हम तो बोलने में तेज हैं, लड़ने में तेज हैं, हम क्या सुनने में तेज हैं? खुदा का कलाम सुनते हैं, तो सुनने में तेज हो और बोलने में क्या ना हो। अभी बात समझा, खुदा का कलाम कहता है कि बोलने में धीरा हो, मुझे और आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे और इसी कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबों की अपनी खताएं गुनाह हटा दिए जाए और हमें यीशु नासरी की अपनी ज़िंदगी